Hello, my dear student of Standard 8. Welcome to you once again. And today we are going to do kind of revision work, and we are going to complete chapter number 1. First part we already completed, and now we are going to complete its second part. Okay, so here is your first part, but before that, I would like to say you something that you have to recite me a slok after me. So let's get started. First of all, you have to be sit straight, your backbone should be in proper position. Okay, so let's get started. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. ओके, अगर आप ये 5 टाइम्स बोलोगे तो यू विल फील मोर रिलैक्स एंड आई थिंक अब हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो विदाउट एनी डिले, सो from here we had left out. Okay, so British trade in Bengal. So let's get started. The British first started their trade on the bank of the river Hooghly and established ports in the year 1651. So they had taken the charge in the port of Hooghly, and it is somewhere in the Kolkata. And they had establishing their ports. That means वो अपने किले बनवा रहे हैं. And it was happened in the year 1651. The fort was garrisoned with the protection of the factory and got a permission from the Mughal Emperor Aurangzeb. At that time, Aurangzeb is ruling in the India, and they had taken permission from them to trade without paying taxes against the annual payment. So उनको annual payment की ज़रूरत नहीं है, and taxes के बिना भी वो अपना business activity conduct कर सकते हैं. As you can see, 1.4 ships and the British of their ports. So you can see यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ हो रही है. वो इंडिया से सामान ले जाके इंग्लैंड में बेच रहे हैं. ओके, एंड वाइस वर्सा. कुछ सामान इंग्लैंड से भी इंडिया में आता होगा, मे बी ना भी आता हो. ठीक है, एट ए टाइम इंडिया इज ए सेल्फ रिलायंट कंट्री. सो let us go through this map and 1 minute before that I had something for you, that is think. Do the merchant from the foreign country seek permission to do such trade in India in today times? Okay, so एक लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में भी कैसा होता है कि किसी फॉरेनर्स को अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो उनको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. वेल हाँ, लेनी पड़ती है. ओके, एंड उनके लिए थोड़े टैक्सेस के प्रोविजंस भी थोड़े अलग होते हैं. उनको नॉर्मल इंडियन से ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं. ओके ओके, नाउ दिस इज द मैप and you can see the first map. Just write to my image. You will find out two kinds of color, yellow color and the blue color. The blue color suggests that the British control area. So basically Britishers ने इतने एरिया को कैप्चर किया हुआ है एंड ये ब्रिटिश की टेरिटरी है. You will found somewhere near Hyderabad and Mysore and Madras. So they were only restricted to the eastern and the southern part. But after certain years in 1854 they took control over the whole coastal line. You can see Mumbai, Goa, Madras. Okay, तो यहाँ पे उन लोगों ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया है एंड दे हैड स्प्रेड अप टू द दिल्ली ऑल्सो. सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना किंगडम काफ़ी स्प्रेड कर लिया है. बट थिंग गॉट मोर वर्स्ट एंड इट इज़ यू कैन सी इन दिस मैप. Now they switched more ahead and they took control over the Pakistan area, and of course they defeated the Punjab state. That is why they took control over there, and Sindh area also, and even Afghanistan also. So this story is starting with the Battle of Plassey in the year 1757. But up to the 1857 they took control in the whole of India. The only yellow patches you can see, they had already accepted the supremacy of the Britishers. इन लोगों ने मान लिया कि ब्रिटिश आप लोग महान हो, हम लोग आपकी शरण में हैं. ठीक है, so such kinds of things were happen. Now after the map you can see by this time. So हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं. Okay, now by this time the East India Company was in the race to earn more and more money. ओके, सो यहाँ तक तो मतलब वो लोग वो सिर्फ एक ही काम था इंडिया में. दे हैव टू एक्सप्लॉइट अवर फार्मर्स. दे ओनली सपोज टू अर्न मनी. उनको बस टैक्सेस कलेक्शन से मतलब था. यहाँ के लोग मर रहे हैं, फेमाइन हो रहा है, फ्लड आ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको. उनको बस अपना पैसा चाहिए.
As per the order passed in Bengal, only the company avail the benefit of the tax-free trading. मीन्स इनकी कंपनी है, बाकी लोगों की कंपनी नहीं है. डेट मीन्स ये अपनी कंपनी के लिए सब कुछ टैक्स फ्री कर दिया है, इनको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. बट ऑन द अदर हैंड वो सबके लिए टैक्सेस लगा के रखे थे इन्होंने. ओके. However, many officers who are engaged in the private trade did not pay taxes at all. As a result, the income generated from the tax collection of the Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. एंड जब ये फ्रीक्वेंटली जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जबकि प्राइवेट ट्रेडर्स हैं ये भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो मुर्शिद कुली खान ने इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना स्टार्ट किया, क्योंकि स्टेट को चलाने के लिए हमको पैसे चाहिए एंड वो इनकम टैक्स के फॉर्म, वो टैक्स के फॉर्म में ही आते हैं एंड ये लोग फिर टैक्सेस रेगुलरली पे कर नहीं रहे थे. सो मुर्शिद कुली खान ने इनका अपोज करना स्टार्ट किया. दिस डिस्प्यूट kept on recurring even during the time of Ali Vardi Khan. So इन मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान भी आते हैं, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम इतनी कुछ सॉर्ट आउट होती नहीं है. इसके अलावा फिर आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज, एंड इनके बाद जो उनके नेक्स्ट सन है डेट इज सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब बनते हैं, नवाब के बंगाल बनते हैं. एनी हाउ ही गॉट इन्वॉल्व इन टू अ मेजर बैटल विद द ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को सीधा मतलब लड़ाई तक की धमकी दे दी थी कि अगर आप टैक्सेस पे नहीं करोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा. एंड इसी की वजह से फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ. ओके. नाउ व्हाट इज दिस बैटल ऑफ प्लासी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ कैरेक्टर्स दिमाग में फिट करने होंगे. ओके. पहला कैरेक्टर जिसका आप फोटो देख रहे हो, सिराजुद्दौला, ये कौन है? ये है बंगाल के नवाब. ओके. दूसरा कैरेक्टर डेट इज रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिशर्स के हेड है. तीसरा कैरेक्टर है अपनी स्टोरी में डेट इज मीर जाफर. एंड मीर जाफर कौन है? मीर जाफर इज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला. इन सिंपल वर्ड्स, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति है. तो आपको अगर ये तीन कैरेक्टर क्लियर हो गए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756. तो 1756 में ये बंगाल के नवाब बनते हैं. नवाब के बंगाल नहीं बनते हैं. एनी हाउ ही हैड एन ओवरहेलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिशर्स. तो उनका मतलब थोड़ा सा उनको इनकी और ब्रिटिशर्स की आपस में बनती नहीं थी. द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर ऑफ द सिराजुद्दौला बाई कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट हिम एंड सो डैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल. इवन ब्रिटिशर्स को भी इनका राजा बनना पसंद नहीं था. ओके. एंड ये चाहते थे कि ये कुछ भी करके राजगद्दी से हट जाए, ताकि ब्रिटिशर्स को तो मतलब एक तरह से बेनिफिट मिल जाए ना, टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और ये बंदा है मार मार के टैक्स निकलवा रहा है. देयर वेर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस. लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल टू पे द टैक्सेस विच वेर एप्लीकेबल बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट्स, द सिचुएशन बिकम अ बॉयल. अब जब ये टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं ना, तब सिराजुद्दौला का मतलब दिमाग गर्म हो गया. ही ऑर्डर द ब्रिटिश आर्मी शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री एंड पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन. इन्होंने उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि आप लोग ये किला नहीं बना सकते, आपको सारे टैक्सेस रेगुलरली पे करने हैं. आई डोंट थिंक कभी लोग कितना सीरियसली लेते हैं इसको. दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर द सिराजुद्दौला टू आफ्टर वॉर एंड ही सक्सीडेड एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम द कलकत्ता. इन्होंने क्या किया? अपनी एक आर्मी सेंड की. इन्होंने सारी की सारी आर्मी सेंड करके इन्होंने उनके सारे किले तोड़ दिए, उनकी सारी शिप्स डुबा दी, जला दी, और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भागना पड़ा. ब्रिटिशर्स भाग के कहाँ जाते हैं? ब्रिटिशर्स भाग के जाते हैं मद्रास, डेट मीन चेन्नई. और वहाँ पे जो उनके हेड थे रॉबर्ट क्लाइव, उसके पास ये लोग एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं. The British counter-attack under the leadership of Robert Clive. Clive bribed Mir Jafar and Commander-in-Chief of Sirajuddaulah with a promise to confirm the throne of Bengal to him and convince him to join their side. Okay? रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही शातिर समझदार इंसान था. ही नो कि अगर मैं बंगाल पे डायरेक्ट अटैक करूँगा तो बंगाल की आर्मी उनकी ऐसी तैसी कर देगी. ठीक है. एंड वो जीत ही नहीं सकते. सीधी लड़ाई में तो भूल ही जाओ, पॉसिबल ही नहीं है. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की विद सिराजुद्दौला, जो कमांडर इन चीफ है सिराजुद्दौला का. एंड उनको बोला कि आप हमारी साइड हो जाओ, एंड जब लड़ाई होगी
तो आप हार जाना, सिराजुद्दौला हार जाएगा और हम आपको बंगाल का नया नवाब बना देंगे। तो यहाँ पे तो भाई मीर जाफ़र के मन में लड्डू फूटे। ओके, एंड ही एग्रीड एंड वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया। दो इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द बंगाल, बट वो किसकी साइड है? दुश्मन की साइड है। ओके, विद दिस हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर सिराजुद्दौला। ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी मदद से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और उनको मार दिया। रिमेंबर, यहाँ पे मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मर्डर सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, ये दिमाग में रखना क्योंकि आगे आएगा। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी ये उनकी पहली लड़ाई थी जो लोग जीत गए थे इन इंडिया, विच मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड यहाँ से हमारे कंट्री में ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। दस दिस वॉर इज कंसिडर टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसीलिए हम लोग इसको इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, थिंग्स टू नो। डू यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? अच्छा, इसको आप बता सकते हो कि प्लासी क्यों नाम दिया गया है? वेल, द ओरिजिनल नेम इज पलासी, प्लासी। ओके, एंड द ट्री ऑफ पलास, दैट इज खाखरा, द फ्लावर ऑफ प्लास ट्री आर saffron in color and are used in making colors for होली। तो वहाँ पे बहुत सारे पलास के ट्री होते हैं एंड इसमें जो फूल लगते हैं ना वो थोड़े सैफरॉन कलर के होते हैं, सैफरॉन कलर के होते हैं। एंड इन पत्तों का इस्तेमाल यूजुअली होली के लिए कलर्स बनाने में किए जाते हैं। एंड ये जो मतलब है स्किन फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ना कि हमारे वो हार्मफुल केमिकल्स वाले कलर जो स्किन को डैमेज करते हैं। ये अगर आप ये लगाओगे कलर एज ए कलर यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को ज़्यादा कोई डैमेज होगा ही नहीं। डू हैड सिराजुद्दौला हैड वन द बैटल ऑफ प्लासी, व्हाट वुड हैव बीन इट्स इम्पैक्ट? अगर सिराजुद्दौला उस टाइम पे लड़ाई जीत जाता तो क्या होता? ब्रिटिशर्स का सपना टूट जाता, ब्रिटिशर्स इंडिया में कभी अपना रूल इस्टेब्लिश कर ही नहीं पाते, ना हमारा देश कभी ब्रिटिशर्स का गुलाम बनता, अगर वो बैटल में सिराजुद्दौला जीत गया होता तो। ओके, now friends, remember battle of plassey happened in the year 1757. okay, and 1757 में जैसे battle of plassey होता है after 7 years means 1757 के बाद आपको 7 प्लस करना है, डेट मीन्स इन द ईयर 1764 बैटल ऑफ बक्सर होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा बीच की स्टोरी समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको शायद क्लियरली ना दिया हो। सी, मीर जाफ़र को इन लोगों ने नवाब बना दिया। अब ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं मीर जाफ़र आप ऐसा कीजिए, तो मीर जाफ़र ने ऐसे किया। मीर जाफ़र आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मीर जाफ़र ने बोला चलो ठीक है। फिर मीर जाफ़र को फील हुआ कि राजा मैं हूँ या ये हैं, मैं बोलूँगा वो होना चाहिए। सो मीर जाफ़र ने अब सोचा कि अब मुझे ब्रिटिशर्स का कुछ करना पड़ेगा, प्लानिंग करने लग गए। पर यही बात अब कहीं ना कहीं सीक्रेटली ब्रिटिशर्स को पता चल गई, तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र को हटा दिया एंड उनके सन इन लॉ मीर काजिम को नवाब बना दिया। ओके, एंड दैट मीर काजिम ही इज़ अ मोर एफिशिएंट, एंड उसको पता है कि ब्रिटिशर्स ने मुझे राजा क्यों बनाया है, ब्रिटिशर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं उनके लिए पपेट की तरह काम करूँ जैसे मीर जाफ़र करते थे। सो अगेन इन्होंने भी कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट किया। अगेन ब्रिटिशर्स को पता चल गया, पता नहीं ब्रिटिशर्स को पता किसे चल जाता है, बट एनी हाउ उन्होंने मीर काजिम को भी रिमूव कर दिया एंड अगेंस्ट मीर जाफ़र को राजा बना दिया। एंड मीर जाफ़र ने भी आई थिंक सॉरी बोला होगा, आगे फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ये न वो। ठीक है, तो ये सब सिनारियो चल रहा है। ओके, लेकिन मीर काजिम चुप नहीं बैठा, उसने कुछ किया। क्या किया, वेल हम लोग पढ़ लेंगे तो पता चल ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द बैटल ऑफ बक्सर। Battle of Buxar. As promised, East India Company appointed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. So, as per their promise, they appointed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. Robert Clive also went back to England. So, after the Battle of Plassey, he again go to his own country, that is called England. With the passage of time, Mir Jafar become hostile toward the Britishers. So, whatever the Britishers say, blindly Mir Jafar is following them. That means Britishers, East India Company, of course. The
company decided to replace him with his son-in-law Mir Kazim. So ultimately the company decided कि अब हम लोग को I think मीर जाफ़र को चेंज कर देना चाहिए एंड उनकी जगह उनके सन-in-law मीर काजिम को अपॉइंट करना चाहिए. मीर काजिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है डिसिप्लिन. व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? सी, इफ़ यू ज्वाइन आर्मी देन दिस वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. डिसिप्लिन मीन्स आप कुछ अच्छी हैबिट्स कल्टिवेट करो. अगर आप डिसिप्लिन हो ना तो आपको लाइफ में बहुत ईजी सक्सेस मिल जाएगी. आपके काम कभी रुकेंगे नहीं और आप अपने कामों में बहुत एफिशिएंट होंगे. एंड फिर डिसिप्लिन इंसान तो ऑटोमेटिकली क्लेवर हो ही जाता है. आगे बढ़ते हैं. द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन द नवाब एंड द कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस विच अल्टीमेटली ब्रॉट both the forces face to face to each other. In 1763, Mir Kazim was defeated by the company, but he escaped. So कहीं ना कहीं मीर काजिम ने एक प्लानिंग कर ली थी एंड मीर काजिम ने भी उनको बोला कि ठीक है मैं नवाब हूँ लेकिन टैक्सेस तो पे करना पड़ेगा, ठीक है. बट मीर काजिम एंड एक छोटी सी आर्मी के साथ ब्रिटिश के साथ फाइट होती है बट मीर काजिम हार जाता है एंड उसको वहाँ से फिर भागना पड़ता है. अब उसने कुछ किया. क्या किया? ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेज ऑफ नवाब ऑफ अवध. तो उन्होंने अवध के नवाब के साथ एक अलायंस फॉर्म किया. नवसी सिराजुद्दौला. अब जो इंसान पिछले वॉर में मर चुका है वो अब जिंदा कैसे हो गया? इट माइट बी पॉसिबल कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला का मर्डर ना हुआ हो एंड वो कहीं भाग गए हो, ठीक है. एंड मुगल एम्परर शाह आलम, ये तीनों मिलके एक आर्मी फॉर्म करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि ब्रिटिशर्स को हराना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड द ट्रिपल फोर्सेस अटैक ऑन द ब्रिटिशर्स. देखते हैं अब क्या होता है. नीचे वाली पैराग्राफ में आ जाते हैं. देयर कंबाइंड फोर्सेस मेट एट द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन द 1764. तो 1764 में एक तरफ ट्रिपल अलायंस की आर्मी है और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स की आर्मी है एंड दुसुम दुसुम शुरू हो जाता है. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर. ओके, तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाता है. ब्रिटिश कंपनी जो है वो वॉर जीत जाती है एंड ऑल ऑफ सडन बंगाल, अवध जो लखनऊ है एंड मुगल एम्परर वॉज अंडर देयर कंट्रोल. तो अभी तक तो ब्रिटिशर्स सिर्फ एक ही किंगडम पे रूल कर रहे थे, अब तो 3 किंगडम उनके अंडर में आ गए एंड यहाँ से पूरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया. Robert Clive was sent to India and to take control over the situation. That is how the East India Company, a trading company, emerged a political power in the Indian subcontinent. तो जो एक कंपनी इंडिया में रूल बस खाली बिजनेस करने आई थी, एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है इंडिया में. ओके, व्हाट टू डू, थोड़ा सैड फील हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. डेट इज द ड्राफ्ट. नाउ थिंक मतलब क्या? ड्राफ्ट हेडलाइंस फॉर द न्यूज पेपर पब्लिश इन द ब्रिटेन एंड पटना विद द रेफरेंस ऑफ द रिपोर्ट प्रिंटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी एंड द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला. बैटल ऑफ प्लासी एंड सिराजुद्दौला की मौत. आई थिंक बैटल ऑफ बक्सर में सिराजुद्दौला की जगह मीर काजिम होता तो ज़्यादा बेटर लगता, ठीक है. तो आपको 2 अलग अलग एंगल से सोचना है. सी, suppose you are a Britishers. Early in the morning you got the newspaper that our East India Company had defeated Sirajuddaulah and took control over the Bengal region. तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होती है इफ़ वी स्टे इन इंग्लैंड. लेकिन मान लो हम अगर पास में कहीं बिहार वार के कोई किंगडम में होते हैं और न्यूज़पेपर हमको आता कि बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स को चला गया है, तो हमारे लिए बहुत सैड न्यूज़ होती. ओके, नाउ talking about exercises, question answer and all that we already discussed, but since it's my duty to read all the questions, so let's get started. Why the European failed to need to discover a new sea route to in India? क्योंकि लैंड रूट ब्लॉक हो गया था. मुस्लिम टर्क्स ने इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर लिया था, इसलिए उनको सी रूट से आना पड़ा. ओके, नाउ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 था Who were the first and the last European to arrive in India? Well, they are the Portuguese. पोर्टुगीज़ इंडिया में सबसे पहले आए थे एंड सबसे लास्ट में गए. अब आई थिंक कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्यों लास्ट में गए? सी फ्रेंड्स, ये हम लोग स्टैंडर्ड 9th में पढ़ेंगे या 8 के सेमेस्टर 2 में भी आ ही जाएगा. ब्रिटिशर्स इंडिया को 1947
15 अगस्त को छोड़ चुके थे। इसके बाद फिर फ्रेंच वाले लोग भी कुछ 1954 तक छोड़ के चले गए। 1961 में जाकर पोर्टुगीज ने भी इंडियन छोड़ा के हमको उनको मार के भगाना पड़ा। ओके बिटवीन whom was the battle of Plassey fought and what were its results? तो battle of Plassey was fought between the Sirajuddaulah and British East India Company under the leadership of Robert Clive, and British East India Company won that war because of the Mir Jafar. Okay. Why did Battle of Buxar occur? ओके सो बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स का हमको रोकना था एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रिपल अलायंस आर्मी थी वो हार गई और वो सारा किंगडम अब ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। हाउ डिड द पोर्टुगीज रूल केम टू एन एंड? पोर्टुगीज रूलर्स पहले बहुत ही एक्टिव मोड में थे एंड उन लोगों ने बहुत ही अपना किंगडम स्प्रेड किया, बट बाद में क्या हुआ कि उनकी कंप्लेन हो गई एंड आई थिंक शाहजहाँ थे या कौन थे, उन्होंने उनके सारी शिप्स तोड़ दी। बट बाद में कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट होता है जिसमें उन लोगों को सिर्फ गोवा दीव दमन से ही ऑपरेटिंग करने की फैसिलिटी मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट हमने आज क्या क्या किया। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने हुगली में अपने पोर्ट इस्टेब्लिश किए, उन्होंने औरंगजेब से कॉन्ट्रैक्ट किया और कुछ टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी। इस वाले में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपने किंगडम को स्प्रेड किया। जो पहले बहुत लिमिटेड एरिया में थे वो लगभग 100 साल में पूरे इंडिया में फैल चुके हैं। आफ्टर डेट हम लोगों ने इस पैराग्राफ में हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जो नए नवाब बने तो उन लोगों ने तो बोला कि आप टैक्सेस पे करो। सो चाहे मुर्शिद कुली खान हो, अली वर्दी खान हो या सिराजुद्दौला हो, ब्रिटिशर्स पेमेंट ठीक से कर नहीं रहे थे एंड इसी के कारण फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, जिसमें मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के, ये दुश्मनों से जाके मिल जाते हैं एंड रॉबर्ट क्लाइव ये वॉर जीत जाते हैं। ओके एंड यहाँ से ब्रिटिश रूल की इंडिया में स्टार्टिंग होती है। वेल इसका नाम प्लासी क्यों था? क्योंकि यहाँ पे प्लास का ट्री होता है जिसके जो लीव्स होते हैं वो सैफरॉन कलर के होते हैं एंड जो हम लोग होली में यूज़ करते हैं। इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया अगेन, फिर उसके बाद मीर काजिम आते हैं, फिर अगेन मीर जाफ़र आते हैं। बाय द टाइम मीर काजिम एक नवाब ऑफ अवध और शाह एंड मुग़ल एम्परर से कोलैबोरेशन करके अटैक करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़ाई में भी हार जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। आई होप यू guys are enjoying this session, so keep learning, keep watching, and bye everyone.